Hello and welcome students to our new channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are going to solve section A of your last Gala paper 6. Section A जो है वो 16 मार्क्स का है इन टोटल एंड उसमें आपका पूरा का पूरा जो मार्क रहेगा वो आपका सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आप पूरा साल पढ़ चुके हैं. तो 16 में से बिल्कुल भी कोई मार्क डिडक्शन होना नहीं चाहिए. Be very much prepared before you start your Gala solutions. Let's see what questions are there. First question is, read the following passage and select the appropriate answers from the options given below. And this passage is from your chapter number 8, Sermon at Benares, जिसमें किसा गोतामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, होपलेस फील करने लगती है that she is not going to get any kind of a solution. Let's see what questions follow. How did Kisa Gotami feel at first on being unable to find mustard seeds? Kisa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside. So Kisa Gotami became weary and hopeless पहले अलग अलग ऑप्शन में, लेकिन थर्ड में आपके पास ऑप्शन है both A and B का. Your question 2 is, what did the flickering lights make her realize? Where are these flickering lights? And sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered. Lights of the city as they flickered and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere. Reigned मतलब spread up हो गई, छा गई. एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन. फिर उनको रियलाइज होता है कि जैसे कि कोई भी ह्यूमन बींग, कोई भी लिविंग बींग जो है वो एग्जिस्ट अगर तो करता है तो वंस और सूनर और लेटर वो कभी ना कभी दुनिया से जाने भी वाले हैं. शी रियलाइजेस दैट. सो शी ओके, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक हर रियलाइज? दैट शी इज बीइंग सेल्फिश, men are mortal, death is common to all, or all of these. She realized all these things, that she was being selfish when she was trying to make her son alive again. And then death is common to all means all living beings, and men are mortal. Human beings जो होते हैं वो कि mortal होते हैं, वो अमर नहीं होते. So your correct option is all of these. Let's move to question number 2, which is again a passage, but इसमें से आपको multiple choice questions नहीं आएंगे, इसमें आपको 1 mark का question answers रहेंगे. This question is from chapter number 5. Let's see what questions are followed. Your third question is, why is the building called ugly? हमारे passage में building को ugly बोल रहे हैं. Against the backdrop of densely wood hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक सिर्फ tea bushes दिखाई दे रहे थे. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. क्यों बोला गया बिल्डिंग को ugly? तो बिल्डिंग is called ugly because it was old with smoke billowing out of tall chimneys, and somewhere it ruined the view of beautiful tea bushes. Why does the author call the tea plants a sea of tea bushes? टी bushes को sea क्यों बोला गया है? तो हम अपने क्वेश्चन में से ही अपने आंसर की स्टार्ट करेंगे. कॉल हमारा वर्ब है और हमारे हेल्पिंग वर्ब में दिया है डस, तो हम आंसर में कॉल के आगे एस या ई एस वट सूट्स हमारे वर्ब के साथ, कॉल के साथ हम एस लगा देंगे. द ऑथर कॉल्स द टी प्लांट्स अ सी ऑफ टी bushes because the tea bushes covered a huge part of land. In a similar way, like sea covers a huge part of earth, the tea bushes covered that particular part of land. So it is called, there were lands of hundreds of acres covered with tea farms. So it is called a sea of tea bushes. And the last question of this passage is, what are the doll-like figures referred to? यहाँ पे हमको बोला है busily moved doll-like figures. ये doll-like figures क्या थे टी bushes की फार्म के बीच में? वो थे टी प्लकर्स जो कि टी को प्लांट्स में से प्लक कर रहे थे. The doll-like figures are referred to tea pluckers among the farm. Question number 3 is fill in the blank of 5 marks, 5 blanks with 5 options. आपको बस चूज करना है कौन सा वाला कौन सी प्लेस पे सही सेट होगा. This will be again from your first flight book only. आप रीड कर चुके हैं chapters. It should never be so difficult for you. Okay, first we will read the options: preening, sunk, lying, looking and dozing. Now let's take meaning of these words. Preening मतलब क्या? कोई भी चीज़ को ठीक करना, like अनदर वर्ड फॉर ग्रूमिंग, कि जैसे अगर हमारे कपड़े खराब हो गए तो हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, कहीं क्रीज तो नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज प्रीनिंग. विल सेट आवर हेयर्स, विल सेट आवर हैंड्स प्रॉपरली इन अ गुड पॉस्चर, दैट इज कॉल्ड एज प्रीनिंग. संक मतलब कहीं पे इट इज सिनोनिम ऑफ ड्राउन, बट हियर इट इज अ मीनिंग ऑफ लाइक अगर हम याद करने जाते हैं चैप्टर में से तो ये चैप्टर
फर्स्ट फ्लाइट का है कि जैसे सीगल के जो यंग ब्रदर एंड सिस्टर थे वो अपनी नेक जो थी वो अपने हेड में संक करके बैठे हुए थे. लाइंग मीन्स लाइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, looking and dozing. These are your words. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads. Heads were where? Heads were sunk into the necks, into their necks. His father was blank the feather. Feathers को क्या कर सकते हैं उनके father? Preening. And his father was preening his feathers, and on his white black, only his mother was looking at him. Okay, these are your score 5 marks, liquid 5 marks, which you can score very easily. The last question of this section is 2 marker वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 में से any 3 ऑप्ट करने होंगे. ये भी फर्स्ट फ्लाइट बुक के ही है जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला मीन टू से दैट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ऑपरेसर मतलब जो कि अन्याय करता है, ऑपरेस्ड मतलब जिस पर अन्याय हो रहा है, वो दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से कैसे रॉब्ड ऑफ है. चलिए देखें व्हाट इज योर आंसर. नेल्सन मंडेला मीन्स टू से दैट अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, मतलब ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक ऑपरेसर जो होता है वो कि हेट्रेड का प्रिजनर होता है, जो कि नफरत से बंधा हुआ है. देखने जाए तो वो भी किसी चीज़ से बंधा है जो कि है नफरत. उसके अंदर नफरत और लोगों के लिए नेगेटिव इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता. सो ही इज़ वेरी ब्रूटल. ही यूजेस द वर्ड अलाइक. क्वेश्चन में अलाइक हमको पूछा है. ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों अपोनेंट्स होते हैं, तो वो अलाइक कैसे हो सकते हैं? बिकॉज टू कंपेयर द कैप्टिविटी ऑफ द ऑपरेसर. ऑपरेसर भी तो कैप्टिवेटेड है, वो हेट्रेड से कैप्टिवेटेड है, और ऑपरेस्ड जो है उनको तो खुद ऑपरेसर ही कैप्टिवेट कर रहा है, उसको बांध के रख रहा है. हु ट्रीट समवन पुअरली एंड ऑपरेस्ड हु इज बीइंग ट्रीटेड पुअरली. दिस विल बी योर आंसर. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन थॉट्स, बट कंटेंट यही रहना चाहिए. आपको कंटेंट नहीं बिगाड़ना है, आपको अपने टेंसेस, अपना ग्रामर नहीं बिगाड़ना है. बाकी आप अपने वे में भी आंसर लिख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू मे राइट नाउ विदाउट गेटिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस. यू कैन प्रैक्टिस इट. Next question, who was Lencho and what circumstances forced him to write a letter to God? लेंचो कौन है और उनको क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्होंने गॉड को लेटर लिखा? गॉड जिनका कोई एड्रेस नहीं है, गॉड जो पता नहीं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी लास्ट होप में गॉड को लेटर लिखना ही रह गया था. लेंचो वॉज अ फार्मर हु वर्कड डे एंड नाइट ऑन हिज कॉर्नफील्ड्स. वो अपनी कॉर्नफील्ड्स पे दिन रात काम करते थे, बट वो तो बिगड़ गई थी. टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, उनको अच्छी हार्वेस्ट चाहिए थी और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इस बार की तो उनकी हार्वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है. ही फेल इनटू द सर्कमस्टेंसेस वेयर द रेन टर्न्ड इनटू हेलस्टोन्स व्हिच रूइंड हिज एंटायर राइप कॉर्नफील्ड्स. सो ही वाज लेफ्ट विथ टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर सम पेसोज टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट ईयर एज गॉड वॉज हिज ओनली लास्ट होप. वो चाहते थे कि भगवान उनको कुछ पैसोस दे दे, 100 पैसोस दे दे, ताकि वो नेक्स्ट ईयर सर्वाइव भी कर सके और एक और क्रॉप जो थी वो ग्रो कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड नरेटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली. उनको किसने हेल्प की, या वो खुद से आ गई? क्या उनका प्लेन काफ़ी अच्छा था, या उनका प्लेन जो था वो बहुत ओल्ड था तो वो खुद से नहीं आ पा रहे थे? वो कैसे उस स्टॉर्म से बाहर सेफली लैंड कर पाए थे? The narrator got out of the storm in the night to land safely with the help of the pilot of another aeroplane. ये aeroplane कौन सा था? The black aeroplane. It had no lights on its wings and the narrator had no means of communication to send the signal that he is lost in the storm. नरेटर जो हैं, जो हमारे फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं, उनके पास कोई भी कम्युनिकेशन का मीन्स, उनका रेडियो डेट था, उनके पास कंपस नहीं था, वो ग्राउंड स्टाफ को बता भी नहीं सक रहे थे कि वो स्टॉर्म में फंस गए हैं. तो फिर कहाँ से पता नहीं ये ब्लैक एरोप्लेन आया और उनके पायलट ने उनको हेल्प किया कि स्टॉर्म से बाहर लाने के लिए. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन केम आउट ऑफ नोवेयर एंड हेल्प द नरेटर टू शो द डायरेक्शन टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एंड लेफ्ट. अगेन जब जो नरेटर हैं उनने जैसे ही लैंड किया था वैसे ही उनको नहीं दिख रहे थे जो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट थे, उनको थैंक करना था, बट नरेटर अकेले ही लैंड किए. दूसरा एरोप्लेन जो था उनने लैंड किया ही नहीं. एंड ही गॉट लॉस्ट समवेयर इन द डार्क नाइट स्काई.
14th question says, how did Kisagutami realize that life and death is a process? Life और death ह्यूमन प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि जिसको लाइफ मिल रही है उसको डेथ ज़रूर मिलनी है। किसागुतामी को ये बात कब समझ में आई? किसागुतामी, ओके, व्हाई आई हैव रिटन रियलाइज्ड फॉर रियलाइज, मैंने रियलाइज के बदले रियलाइज्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में डिड बोला है। जब डिड आता है हम अपने मेन वर्ब को वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना देते हैं। किसागुतामी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस व्हेन शी कुड नॉट फाइंड द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम वन सच हाउस or family where no one had ever died or any sorrow had covered their family। उनको ऐसी कोई फैमिली ही नहीं मिली जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, कोई सॉरो ना हुआ, क्योंकि बुद्धा ने बोला था कि ऐसे घर से ही आपको मस्टर्ड सीड्स लाने हैं जो उनको कभी भी नहीं मिले। The Buddha assigned her this task to teach her a lesson that death is inevitable to anyone who lives or exists in life। डेथ जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब इनसेपरेबल है। हर एक इंसान, हर एक लिविंग बीइंग जो कि जी रहा है हैज़ टू डाई समडे और अनदर। She learned that each living being will die someday sooner or later when the time arrives। When the right time arrives, we take birth. When the right time arrives, we do whatever things we have in our career. And when the right time arrives, we die someday। This is what Kisagutami learned by Gautam Buddha's lesson। Okay, our last question for this section is, how did Valli plan her bus ride? Madam rides the bus का है ये question। What did she find about the bus and how did she save up the fare? आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए। अब आप सोचेंगे कि 2 मार्क्स में इतना सारा लिखेंगे तो ओवर राइटिंग के मार्क्स कट जाएंगे, बट नो, आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं इन अ पार्ट एंड यू हैव टू राइट 1 line or 2 फॉर ईच ऑफ देम, सो यू वोंट गेट अ फियर ऑफ mark deduction। Okay, how did Valli plan her bus ride? So we'll write Valli planned her bus ride by gathering the information from regular passengers, saving money and choosing the correct time to sneak out of the house without being caught by her mother। Without getting caught by her mother मतलब वो अपनी मदर से छुप कर जाना चाहती थी वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरी किसी टाउन में उनकी मदर वो 8 years की थी, तो उनकी मदर उनको कैसे ही जाने देती। सो वल्ली प्लान कि उनने पहले तो इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करी कि कौन रेगुलर ट्रैवलर्स है, रेगुलर पैसेंजर्स हैं, और जो रिसेंटली अभी बस में न्यू जो एकदम पास का टाउन है वहाँ पर जाकर आए। उनने उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली, अपने पैसे सेव करे, मनी जो भी बस की टिकट होती है, एंड चोजिंग द करेक्ट टाइम टू स्नीक आउट, कि छुप कर से कैसे वो दोपहर के टाइम पे घर से निकल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस? उनने बस के लिए क्या फाइंड किया? तो फाइंड हमारा फाउंड हो जाएगा, शी फाउंड आउट अबाउट द बस दैट द बस टू टाउन केम एट एवरी आवर इन हर टाउन। द डिस्टेंस was 6 miles and the fare was 30 paise one way। It was 30 paise one way means Valli has to gather 60 paise if she wants to come back। It was 30 paise for one way। This is a very important thing to mention the fare। अगर तो आप फेयर मेंशन कर रहे हैं तो वो 1 way का है या 2 way का है, वो भी आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वल्ली ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? उसने पैसे इकट्ठा कैसे करे थे? वल्ली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। उनको कहीं भी जो पैसे मिलते थे तो वो इकट्ठा कर लेती थी, गैदर कर लेती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन। व्हाट आर टेम्पटेशंस? द क्रेविंग शी हैड टू बाय न्यू टॉयज टू गेट इनटू फेयर्स। सो she resisted that every craving of her mind to buy peppermint toy balloon and rides on the merry-go-round in a fair। फेयर में जब वो गई थी तब उन्होंने अपनी सारी टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया था कि उनको अभी के लिए तो 60 पैसे जमा करने हैं ताकि कि वो बस में बैठ सके, अपना ओवरवेलमिंग डिज़ायर फुलफिल कर सके। आई होप यू हैव नो डाउट्स इन दिस। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। Be very much prepared for your boards। It will be very easy if you have prepared for the whole year। अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, so be prepared। All the best।